Hello everyone and welcome to this amazing session brought to you by Sriram's IAS. In this session, we will be discussing every single aspect about the examination of UPSC Civil Services. एक IAS कैसे बनते हैं, एक IAS ऑफिसर बनने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, उसे जानेंगे, समझेंगे with our esteemed panelists. We have with us experts of their fields. We have with us Jwala sir, we have with us Anshum sir. Jwala sir के बारे में अगर आपको बताऊं तो he has 5 odd years of experience. He is a graduate from IIT Roorkee. He has faced 3 times UPSC Civil Services interviews. He is a faculty for Science and Technology. Then we have Anshum sir on my left. He is having a decade-long experience of mentoring UPSC aspirants. और इस 10 साल लंबे एक्सपीरियंस के अंदर अंशुम सर ने particularly disaster management, internal security, current affairs and various other aspects of the examination में अपने students को help किया. Along with that, he is a practicing advocate in Delhi High Court. And just to give you a brief introduction about myself, have a decade-long experience myself. I am Sanat Dutt Bhardwaj. I am a faculty for Public Administration optional here at Sriram's IAS. इन 10 सालों के अंदर अगर आपको वैसे बताऊं तो इस पैनल के ऊपर there is somewhere around more than 3 decades of experience. 35 साल के आसपास का एक्सपीरियंस जो इस डायस पर बैठा है वो सब आप लोगों को मदद करने के लिए आए हैं. We are going to discuss how this exam is important and relevant for you guys and आप कैसे इस एग्जाम के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं. एक एक पल इस सेशन का आपके लिए रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है. जानते हैं अपने एक्सपर्ट से. तो शुरुआत करते हैं अंशुम सर से. उनसे मेजर मेरा सवाल ये है कि ये आईएएस एग्जामिनेशन है क्या? Why is there so much of craze amongst so many individuals, particularly अगर आप इंडियंस में मिडिल क्लास पॉपुलेशन की बात करें सर, तो इतना ज्यादा क्रेज क्यों है? Why everybody craves to become an IAS officer? See, Sanat sir, IAS basically is the backbone of our Indian bureaucracy, Indian administration. ये एग्जाम आपको ऑफर करता है एक चैलेंजिंग डोमेन जहां पर आप अपने कंट्री को सर्व कर सकते हो. Along with serving your country, this IAS as a career gives you epitome of power that you can work for the state, that you can work for the center. Along with this, you will get highest privileges, perks and privileges, not just for you but your family. तो ये एक बहुत बड़ा attraction है. Along with this, you have job security, you have endless, important preferred positions like IAS, IPS, IFS gives you opportunity to serve on the strategic positions under union government and state government. Right, sir. Then coming to the second part of the question, that why IAS exam is becoming more prevalent among the middle class, the main reason behind is हमारी society कैसे brought up हो रही है. Like a young aspirant is seeing IAS officer, IPS officer are invited in their school, colleges as chief guests. So they tend to see themselves in their shoes. So this is the biggest attraction. Then if we talk about some years from now, that red beacon culture, एक वो भी कह सकते हो एक लेवल ऑफ अट्रैक्शन था हमारे विलेजेस, स्पेशली जो हमारे आउट ऑफ सिटीज से जो स्टूडेंट्स आते हैं, एस्पिरेंट्स आते हैं, उनके लिए एक बहुत एडमायरेबल पोजीशन थी जहां पर वो अपने आप को देखते हैं. देन इन मॉडर्न टाइम्स विद एवोल्यूशन ऑफ दिस सोशल मीडिया, द सोशल इन्फ्लुएंसिंग, आज हम देखेंगे कि ऑल दीज यूट्यूब वीडियोस, द इन शॉर्ट्स where IAS, IPS are seen, their entries are recorded with some motivational song. This right. becomes, you can say, this rather procrastinate. It forces an aspirant to procrastinate himself in that IAS, the person sees himself in that position. So this is why you can see that the middle class is, running after this exam. सर आपने रेड बीकन की बात करी, वो लाल बत्ती वाली एम्बेसडर की अगर सर मैं बात करूं तो
एम्बेसडर एज अ कार, वो चाहे नापसंद भी हो किसी को, बट जब उसके ऊपर लाल बत्ती, वो नीली बत्ती लगती थी तो देयर वाज अ ह्यूज क्रेज. एंड आई स्टिल रिमेम्बर माय फादर टेलिंग अस दैट जब इस गाड़ी के ऊपर वो लाल बत्ती लग जाती है तो ये गाड़ी गाड़ी नहीं जहाज हो जाता है. Exactly. ये किसी के रोके रुकता नहीं है. Yes. एंड आई स्टिल रिमेम्बर हिम टेलिंग मी द फैक्ट दैट एक यही एक ऐसा एग्जाम है जो आपके लिए हर दरवाजे खोल देगा. If you would notice, if you remember, sir, this is one thing that is fairly certain for UPSC examination. आप इंटरव्यू का दरवाजा जरूर खटखटाते हैं, बट when you get selected, उसके बाद दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुलने शुरू हो जाते हैं. And that is, of course, rhetorical as well as a very, established statement for UPSC examination. Sir, हर कोई IAS बनना चाह रहा है, हर कोई चाहता है कि वो उस पराकाष्ठा तक पहुंच जाए, उस लेवल तक पहुंच जाए जहां पर उसके लिए भी दरवाजे खुलें. वो उस स्टेटस को अचीव करना चाहता है, बट वो ये नहीं जानता है कि क्या वो इस एग्जाम को टेकअप कर सकता है या नहीं कर सकता है. अकॉर्डिंग टू यू एंड एज फार एज UPSC is concerned, who all can prepare for this examination, sir? Yes, sir. So if you look at what UPSC is requiring, so UPSC requires 3 eligibility criteria. So first eligibility criteria is with respect to age, that minimum age should be 21 and the maximum age is 32 for general candidates. If you belong to like other reserved categories, then for OBC it is till 35 and for SC ST it is till 37. Other aspect to this is the number of attempts. So for general candidates, the number of attempts is limited to 6. For OBC it is 9. For SC ST it is unlimited, but the barrier is basically the age. So 37, that is the age, that is the barrier. Yes. And with respect to educational qualification, what is the educational qualification that is required? तो UPSC ने बोला है कि आपको ग्रेजुएट होना है, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि आप ग्रेजुएट होने हैं, पर इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आपको कितने परसेंटेज मार्क्स से पास होना है. ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के एग्जाम जैसा नहीं है कि आपको 99% मार्क्स चाहिए तभी आपकी एंट्रेंस होगी. तो ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, एक सेकंड चांस देता है हर एस्पिरेंट को अपने लाइफ में कि आपने यदि पीछे आपने स्कूल में कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं करी है, कोई भी रीजन की वजह से आप मोटिवेटेड नहीं रहे हो, फैमिली सिचुएशन, सोसाइटल सिचुएशन, तो ये आपको एक सेकंड चांस देता है जहाँ पे आप अपने मेटल को प्रूव कर सकते हो फिर से. सो ये एक बहुत ब्रॉड बेस्ड एग्जाम है. Right. So the entry barrier is it is literally there is no entry barrier. Anybody who is a graduate can write this exam. So there is one basic notion that many students have in their heads, और ये एक misconceived notion है कि वो कहते हैं कि अगर IAS बनना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, तो बेसिकली A से आर्ट्स है तो उन्हें आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना जरूरी है. सो इज देयर एनी लिमिटेशन टू द सब्जेक्ट दैट दे हैव टू चूज आफ्टर देयर 10th स्टैंडर्ड? क्या वो 10th स्टैंडर्ड के बाद साइंस स्ट्रीम लेकर या मान लीजिए मेडिकल नॉन मेडिकल लेकर कॉमर्स बैकग्राउंड लेकर UPSC के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? ऐसा कोई बैरियर तो नहीं है? ऐसा this barrier used to be there earlier, but now there is no barrier. So whether you are from arts background, whether you are from science background, whether you are from engineering background, आप lawyer हो, आप doctor हो, आप practicing doctor हो, सबके लिए exam open है. So it is like opening doors for everybody. Everybody who thinks that he or she can serve the country in this capacity can sit for the exam. So there is no barrier. सर मुझे इस बात पे अमर्त्य सेन जी की एक बात याद आ गई. ही हैड दिस कैपेबिलिटीज अप्रोच व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि हर इंसान की क्षमताएं जो हैं वो उसे बढ़ाना चाहिए, सरकार को भी बढ़ाना चाहिए. एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट आई थिंक UPSC ने एज एन एग्जामिनेशन एजेंसी जो हर एक स्टूडेंट को अलाउ किया है कि वो अपनी क्षमताओं के बल पर इस एग्जाम को क्रैक कर सके. सर एग्जाम को क्रैक कर सके लेकिन कैसे? व्हाट शुड बी द अप्रोच? एनीबडी हु इज फॉलोइंग दिस ड्रीम, वो सपना मन में धारण करके यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर आ जाता है, दिल्ली आ जाता है सर, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में श्री राम जायस में भी आता है, वो सपने को साकार कैसे किया जाए? व्हाट शुड बी द बेसिक स्टेप्स? See, sir, when it comes to strategy for this exam, इसकी कोई एक single strategy नहीं है.
every aspirant has its own approach because ये exam ही इतना ज़्यादा diversified है. But there are some common objectives that every aspirant should keep in their mind. So this exam comes in 3 stages, we all know that. First stage is preliminary examination, which is objective in nature, where we have 2 papers. Then there is descriptive examination, which is your mains examination, जहाँ पर there are all set of papers, GS1, GS2, GS3, GS4, then your optional, essays, and then your qualifying papers. And then the third stage is interview. Now, coming to the strategy, अगर हम इसको strategical point of view से सोचे, so I consider this exam as a war, as a battle. And when you want to enter this battle, you should know your enemy. Fighting any battle in your life, the first thing that you should know is, you should know what is the capability of your enemy. आपका enemy क्या कर सकता है? इस केस में हमारा enemy है हमारा UPSC. So उसकी capabilities को समझने के लिए आपको देखना होगा उसका past. वो मिलेगा आपको past year papers से. Right. So this is the first approach that any aspirant in any stage, whether you are a third attempter or last attempt or it is first attempt, you have to keep that threshold in mind कि UPSC किस हिसाब से आपको डैमेज कर सकता है और वो वहां दिया है. Then coming to how to prepare for prelims. So see sir, prelims basically when we see the syllabus of UPSC, everything under the sun is UPSC, including the sun. Okay, sir will be teaching about sun as well. Jwala sir will be taking sun as a topic as well. So everything under the sun, including the sun, is UPSC syllabus. Right. But one thing is, you cannot complete everything. That means nobody is omniscient. Nobody can know everything. Right. So there is a threshold that every person has to make, that beyond this, I do not have to go deep in this topic. Right. Because if you study deep, any topic that you pick a depth, आपकी knowledge तो बढ़ेगी, but ये जरूरी नहीं कि आपका selection है. Right. So there is a threshold where you have to stop. So if you are a beginner, if you are someone who has just started your preparation, if you think your foundation is weak, so I suggest that to build your foundation, go back to school. Going back to school means starting your preparation through your NCRTs. Because irrespective from your field you are in, irrespective you are a science grad or a commerce grad or a humanitarian, you have done your humanities as a part of your graduation, you have to do all those subjects one more time. So that will, kind of give you the brush up of all different aspects of general studies. Then after doing that, you can then move on to your regular books, the suggested readings, which is there for each subject. Okay. Then practicing along with this is very important, like for prelims specifically. So whatever topic that you are doing, you can then switch to past year paper. You can look at what all questions have been asked on the same topic, and then you can practice some similar questions from any mock series available at Shriram IAS. You can do that. Right. Then coming to the mains examination. Prelims examination is recollecting the information. The main objective is the answer is in front of you. You have to hit the right answer. But in mains, the complete game is different. There you have to recall, you have to analyze, and then thirdly you have to express yourself. So when it comes to mains, a person has to not only have that right approach, that is studying what is required for answering a question, then along with that, an aspirant should have a decent knowledge, or he should cover every aspect of your syllabus. So your syllabus is your Bible. The syllabus is you can say that it is the prime thing that you have to focus on. You should know that which topic lies where. Any topic that you are picking up, where it is striking, or which part of your syllabus it is touching. So accordingly, you can start your preparation in mains. Then I would like to also add here that answer writing
is also a key strategy if you are preparing for your mains, because you have to write 6 hours in a day there in the on the D-Day. Right. So you cannot just straight away carry your weapon and straight away firing. You cannot start your firing straight away. You have to practice your weapon in this battle. So in this battle, your answers will be your weapons. So you have to start answer writing from day one. So this is how you can prepare for your prelims as well as mains. सर आपने यूपीएससी को वॉर के साथ जो कंपेयर किया है उससे पता नहीं स्टूडेंट्स को एंथुसियाज्म बूस्ट मिला है नहीं मिला. I got so enthusiastic. I got reminded of one question, sir. मैं 2019 की बात बताता हूँ सर. 2019 में I was taking up history as a challenge for certain students. और history के अंदर particularly they were facing this problem कि ये क्वेश्चन आया तो आया कहाँ से. They had been studying महात्मा गांधी from various sources. सर आपने NCERT का मेंशन किया. There was an old NCERT which was very easily available here in राजेंद्र नगर, but बहुत सारे स्टूडेंट्स ना NCERTs को as reference books देखकर उसको साइड पे रख देते. But surely so अगर आप नोटिस करेंगे सर, even today NCERTs are very strong sources. And I was taking up history as a challenge for many students, guide कर रहा था सर स्टूडेंट्स को. और मॉडर्न हिस्ट्री के उस NCERT में से पर्टिकुलरली एक स्टेटमेंट ऐसी मुझे मिली जो ना कि मेजर हमारे जो बुक्स हैं, चाहे आप विपिन चंद्रा की बात कीजिए, चाहे आप मेजर जो आज की NCERTs हैं उनकी बात कीजिए, वहां पर महात्मा गांधी से रिलेटेड वो फैक्ट अवेलेबल नहीं था. एंड आई टोल्ड माई स्टूडेंट्स के ये चीज नोट कर लो, ये NCERT में है, ओल्ड NCERT में है, ये यूपीएससी का फेवरेट खाना खजाना है, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा. एंड सर यू वुड नॉट बिलीव वो एग्जैक्ट सेम फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया था. एंड एग्जैक्टली वही क्वेश्चन था whether or not महात्मा गांधी was associated with this particular institution or not. Okay. And it basically reminds me कि सर NCERTs की कितनी इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंस कितनी है. सर आपने बोला कि बैक टू स्कूल जाना पड़ेगा, वापस से स्कूल वाली NCERTs उठानी पड़ेंगी. I have come to realize in the past and even today, हम जब जैसे पॉलिटी को NCERTs के जरिए पढ़ाते हैं, साइंस को NCERT के जरिए, हिस्ट्री को NCERTs के जरिए पढ़ाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट का अब जो NCERTs के प्रति रवैया है, पर्सपेक्टिव है, वो कंप्लीटली चेंज होने लगता है. एंड ऐसा लगता है कि NCERTs स्कूल लेवल की बुक्स नहीं है, ये वो बुक्स हैं जिसको बेसिकली PhD लेवल, मास्टर्स लेवल से उठाकर कंपाइल करके कंसाइज फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में स्टूडेंट्स को दे दिया गया है. एंड इट फील्स आउट ऑफ प्लेस इन स्कूल्स एंड इट इज सो रिलेवेंट फॉर एक IAS एस्पिरेंट के लिए. कितनी इंपॉर्टेंस है मैं कहते हुए भी मुझे लगता है कि कम ही बोल रहा हूँ. सर एक और चीज आपने बोली थी विद रिस्पेक्ट टू NCERTs, विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन, एंड दैट इज द सिलेबस. हर एक एस्पिरेंट के मन में एक डाउट हमेशा रहता है कि वो किस तरीके से ट्रेड करे. जहां पर भी आपको परेशानी होती है, स्टूडेंट्स एक चीज का खास ख्याल रखें, आपकी फाउंडेशन आपके सिलेबस से है. आपका हर एक कदम उठेगा तो वो सिलेबस से उठेगा. आप हर एक प्रोसेस को शुरू करेंगे तो वो सिलेबस से शुरू करेंगे. इनफैक्ट आप ही नहीं, यूपीएससी खुद जब एग्जाम बनाती है, वो जो क्वेश्चन पेपर बनाती है, आप नोटिस कीजिएगा GS1 के अंदर GS2, GS3, GS4 जो सिलेबस के पॉइंटर्स हैं, उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपको क्वेश्चंस भी मेंस के अंदर देखने को मिलते हैं. सो सिलेबस को तो निग्लेक्ट कभी करना ही नहीं चाहिए, और अगर जो करता है इट इज लाइक अ कॉल फॉर डूम्सडे, है ना. चलिए, अभी हमने ये समझ लिया कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए. लेकिन ये अप्रोच अगर इतनी आसान होती तो गिने चुने कुछ 100 लोग ही एक IAS IPS ऑफिसर नहीं बनते. कुछ ही गिने चुने लोग इंटरव्यूज क्रैक नहीं करते, कुछ ही गिने चुने लोग प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि लाखों लोग अपीयर होते हैं और उनमें से कुछ 100 लोग ही इस एस्टीम्ड पोजीशन पर यूपीएससी के द्वारा चयनित होते हैं. क्या कारण है, ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं, जानते हैं ज्वाला सर से. सर ये क्या चैलेंजेस हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, क्यों है ऐसा that students are unable to cope with the syllabus, they are not able to qualify the examination, और कौन से ऐसे challenges हैं जिनको overcome करके शायद वो अपने dreams को achieve कर सकते हैं. Sir, with the information era that we are in,
और YouTube के आने के बाद से ऐसा हुआ है कि जो कंटेंट का जो इंफॉर्मेशन है या जो अवेलेबिलिटी है दैट हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली. सो आप आज से 10 साल पहले ले लो तो कंटेंट मिलता नहीं था कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है तो आपको किसी टीचर के पास जाना पड़ता था या कुछ अच्छे सोर्सेज ऑफ बुक्स आपको कलेक्ट करने पड़ते थे तो आप वहां से पढ़ाई करते थे. पर अब आपको रेडिली अवेलेबल है. अब उस रेडिली अवेलेबल मटेरियल में क्या आपके लिए कौन सी चीजें रेलेवेंट है एग्जाम के लिए, दैट हैज बिकम अ चैलेंज. द इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज इटसेल्फ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर प्रिपरेशन नाउ. Certainly, sir. एंड एज यू मेंशन सर कि सिलेबस का जो एक एक कीवर्ड है वो आपके लिए एक बाइबल के जैसा है. वो कीवर्ड आपको थ्रू एंड थ्रू पता होना चाहिए. जैसे आपने, मैं साइंस टेक्नोलॉजी का एग्जांपल देता हूँ आपको. सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस टर्म इज मेंशन्ड बायोटेक्नोलॉजी. Biotechnology is mentioned in your GS paper 3. So what is expected from an aspirant कि उसको बायोलॉजी के बेसिक्स भी पता हो, बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करने भी आता हो, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस उसको पता हो. तो आपको क्या करना है, बायोटेक्नोलॉजी की अच्छी आपको ग्रिप होनी चाहिए. तो आप ये सोचोगे कि मैं करंट अफेयर्स बस पढ़ लेता हूँ, कुछ बायोटेक के जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए और उससे मेरे सवाल बन जाएंगे, तो वो नहीं होगा. सो यू हैव टू हैव ग्रिप ओवर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ the terms that are given in your syllabus. So as Anshum sir said that your syllabus is Bible. So every keyword you should have a thorough understanding of that. Then the current affairs will make a sense of it. आपको बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक्स आपको क्लियर होंगे तो आप न्यूज में कोई भी डेवलपमेंट आएगा तो आप उसको समझ पाओगे. जैसे एक न्यूज आई थी that a woman in USA was cured of HIV using stem cell therapy. Right. For this to appreciate, you need to know what is stem cells. You Certainly. need to know how HIV attacks our immune system. This is not like your current affairs. This is like your basic understanding of humans and human disease and your understanding of stem cells. So पहले आपको फाउंडेशन पे, इसको फाउंडेशन क्यों बोलते हैं हम, फाउंडेशन कोर्सेज को फाउंडेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उससे आपकी हर चीज की समझ बन जाती है. आप सिलेबस देखो कैसे यूपीएससी ने डिजाइन किया है. पहले वो चाहते हैं कि आप अपनी हमारी हिस्ट्री को समझो, आप हिस्ट्री है, आप फिर ज्योग्राफिकल एक्सपेंस को समझो, आप तो उन्होंने हिस्ट्री रखा है, ज्योग्राफी रखा है, आप सोसाइटी को समझो. फिर उसके बाद ये सारी चीजें हो गई तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है आप उसको समझो. फिर उसके बाद आता है कि ये सारी चीजों के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो आप इकोनॉमिक्स समझो. फिर उसके की फ्यूचर क्या होने वाला है तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझो. फिर आप इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी डेवलपमेंट आपने करा है वो लॉस्ट हो जाएगा डिजास्टर से, तो आप वो समझो. और इन सारी चीज के बाद आपको क्या चाहिए कि इंसान सही हो, तो एथिक्स का भी पेपर रखा है. तो इस तरीके से एक पर्सपेक्टिव है. तो आपको पहले स्टैटिक पोर्शन जो कि आपका जो कोर्सेज जो हम करते हैं फाउंडेशन कोर्सेज, तो उसमें हम ये सारी चीजें कवर कर लेते हैं. तो सिलेबस उस तरीके से डिजाइन है, इसलिए आपको पहले फाउंडेशन पे ग्रिप करनी है. उसके बाद ये कंफ्यूजन रहता है, एक चैलेंज रहता है स्टूडेंट के मन में कि मैं पहले करंट अफेयर शुरू करूं या पहले स्टैटिक पोर्शन पहले पढूं. तो आई वुड स्टिल से कि पहले आप फाउंडेशन पे फोकस करें. इसके बाद जो दूसरे चैलेंज जो निकल के आते हैं कि वो कि ऑप्शनल क्या चूज करें, क्योंकि आउट ऑफ 1750 मार्क्स your 500 marks is optional and most of the students because they are of diverse background. So हमने जैसे एलिजिबिलिटी के लिए कहा था कि कोई भी एग्जाम लिख सकता है जो ग्रेजुएट हो, पर उसके बाद एक चैलेंज और आ जाती है, कुछ भी लिखना मतलब वो क्या सेलेक्ट करें स्पेसिफिकली. आप देखते होंगे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स दे आर नॉट प्रेफरिंग टू टेक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, दे वांट टू टेक आर्ट्स सब्जेक्ट एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स आर आल्सो कंफ्यूज्ड दैट इन आर्ट्स व्हाट शुड आई चूज, कि पॉलिटी ले ले, पबैट ले ले, या सोशियोलॉजी ले ले, या एंथ्रो ले ले, या पॉल साइंस ले ले. तो वो कंफ्यूजन हमेशा रहती है. तो ये कंफ्यूजन आप दूर नहीं करोगे तो आपका जो अटेम्प्ट्स है वो बढ़ सकता है. आप क्लैरिटी के साथ फाउंडेशन भी नहीं करोगे और आप क्वेश्चंस और ओवरऑल सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बना पाओगे. तो योर सिलेक्शन ऑफ योर ऑप्शन इज अ की. Another challenge that students or aspirants face is with respect to time management. So when we start preparation, so you are attending classes, you are reading newspapers, you are reading magazine, you are surfing the internet. So you are not able to do justice to everything.
तो आपको लगता है कि टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा है, मैं खाली क्लास जा रहा हूँ और उसके बाद कुछ रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हाँ क्लास के बाद आप कैसे आप टाइम शेड्यूल कर रहे हो, आप करंट न्यूज़पेपर को कितना टाइम दोगे, रिवीजन को कितना टाइम दोगे, डेली रिवीजन को आपको कितना टाइम देना है, वीकली रिवीजन को आपको कितना टाइम देना है, मंथली रिवीजन को कितना टाइम देना है. तो टाइम मैनेजमेंट becomes a very big challenge also. And just as Anshum sir said, answer writing. So ये ऐसा है ना कि ये जो Anshum sir ने जैसे बताया कि real test is answer writing only. On that D-day you have to write for 6 hours for 5 to 6 days. So the real challenge is answer writing. और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बोल दो एक पन्ने लिखने के लिए सर तो they are not able to write, और आर्ट स्टूडेंट को बोल लो एक पन्ने, वो 5 पन्ने भर देंगे, उनको जगह कम पड़ती है. So for engineering students to write answers, that is a challenge. For art students to write something in a precise and concise manner, that is a challenge. We can tell you how to write answers, but ये like ड्राइविंग के जैसा है कि मैं आपको थ्योरी बता सकता हूँ कि ये क्लच है, ये प्लेट है, ये एक्सेलरेटर है, ये गियर है, आपको ऐसे मूव करना है, कोई सामने आता तो कैसे ब्रेक लगाना है. बट आंसर राइटिंग एक स्किल है, आप खुद गाड़ी नहीं चलाओगे तो आप वो आंसर राइटिंग नहीं सीख सकते. तो ये चीज भी एक चैलेंज है और हम भागते हैं. Engineers especially, I am an engineer, I know this, we run away from answer writing. So this is the biggest hurdle and biggest challenge. So ये मोटे challenges हैं, and like Sanat sir can add more. Sir, I am also a fellow engineer first and then I pursued law, so I can correlate to both the panelists here. In fact, मैं आपको बताता हूँ सर, इंजीनियरिंग टाइम्स के अंदर तो स्टूडेंट्स ओवरनाइट स्टडी करते हैं, अगले दिन पेपर में जो भी है लिख के आ जाते हैं. फॉर अस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कोप थ्रू दैट प्रोसेस. मुझे जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मिलते हैं, दे आर ऑलवेज फेसिंग दिस डिफिकल्टी कि उस पर्टिकुलर एफिशिएंसी को जो ओवरनाइट वो लोग निकालते हैं, उसे प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैसे मेंटेन करके रख सकें. तो वो कंसिस्टेंसी का एक मेजर चैलेंज आता है. दूसरा सर, आपने जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात की, ओनली चूजिंग एन ऑप्शनल. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अपने कोर्सेज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल भी हैं. जुलाई 31 से एक बैच शुरू भी हो रहा है, बाइलिंगुअल बैच है सर. और जो ज्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं जो एक बार चुन भी लेते हैं ना ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें फर्दर इंफॉर्मेशन ओवरलोड है सर. और उसके बाद कौन से रिसोर्सेज को पिकअप करना है, किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है. वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस दैट आई थिंक दैट स्टूडेंट्स फेस इज विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि वो हर चीज अफरा तफरी में करने की सोचते हैं. वो ये सोचते हैं कि आज मैंने 1 घंटा इन्वेस्ट किया तो आज के 1 घंटे से ही मेरे पास रिजल्ट्स आ जाने चाहिए. आई शुड बी द मास्टर ऑफ राइटिंग आंसर्स. तो मेरे पास जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला होना चाहिए मेरे को, कि भाई मुझे आज के आज सब पता होना चाहिए. बट द फैक्ट दैट यू हैव सजेस्टेड सर कि आप जैसे हर रोज थोड़ा थोड़ा, सर मेरे मदर हमेशा कहते हैं कि एक लोकोक्ति है सर, वो यहाँ बोलना चाहूंगा, धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए. तो जिस दिन रिजल्ट आना है उस दिन ही उस चीज का रिजल्ट आएगा. आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी धीरे धीरे करके अपने एफर्ट्स को ऐड करना पड़ेगा. एंड ये चीज बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत जल्दबाजी में आंसर राइटिंग बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं. दे हैव नॉट येट अचीव्ड दैट लेवल ऑफ विजडम. उतनी समझ अभी डेवलप की नहीं होती है, अभी सिर्फ सिलेबस देखा होता है और उस सिलेबस के बेसिस पर वो कहते हैं कि हाँ हम कर लेंगे, वो ऐसा हो जाता है. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में उनको गाइड्स की, मेंटर्स की, टीचर्स की जरूरत होती है टू ऐड टू देयर पेशेंस लेवल्स, की थोड़ा सा वो भी इत्मीनान से, शांति से अभी ग्रैब करें, अभी पहले खा लें, फिर बाद में पचाएंगे और फिर एसिमिलेशन हो जाएगा साइंस के हिसाब से अगर मैं बोलूं सर. और फर्दर अगर आप जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुन भी रहे हैं, एक मिसकंसेप्शन रहती है सबके मन में कि मुझे ये ऑप्शनल चुनना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस रीजन और दैट रीजन. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है सर कि एक सर मूवी आई थी अपने जॉन अब्राहम की, और उसमें एक कामत जी थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने एक्टिंग भी की थी. उनका एक डायलॉग है सर, लव दाई नेबर. मैंने वहां से एक डायलॉग पकड़ा था सर और मैंने बोला था कि लव दाई सब्जेक्ट. अगर आप किसी सब्जेक्ट से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, सर आई डिड माई इंजीनियरिंग, आई डिड माई मास्टर्स इन इंजीनियरिंग एंड मेरा सब्जेक्ट काफी कोर था. आपने बायोटेक्नोलॉजी का नाम लिया, उसी के बगल में सर नैनो टेक्नोलॉजी भी है. तो नैनो टेक के अंदर मेरा रिसर्च वर्क था. बट
I always loved various subjects, like I loved the subject of law as well. तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इन लाइफ इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू लव अ फील्ड, जो आप काम कर रहे हैं उसमें अपना पैशन अगर इन्वॉल्व कर लेते हैं, एंड यू वर्क एज इफ इट इज योर ड्यूटी, योर धर्मा, योर आइडियोलॉजी टू वर्क रेगुलरली, कंसिस्टेंटली फॉर द नेक्स्ट 1.5 years टाइम. आपका एग्जाम खुद 8 महीने के करीब ले लेता है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के अंदर. तो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं उसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू गिव योर 100%. ज्यादातर बच्चे जो मेरे पास आते हैं, जैसे सर अगर मैं पब्लिक एड की बात करूं, तो वो फॉर एग्जांपल बहुत सारे सब्जेक्ट्स में थिंकर्स होते हैं सर, और हमारे यहाँ पे भी थिंकर्स हैं बट कंपैरेटिवली थोड़े से कम है, तो ये फायदा हो जाता है स्टूडेंट्स को. बट इन थिंकर्स में भी बच्चा कंफ्यूज रहता है. अनलेस एंड अनटिल यू इमेजिन दीज थिंकर्स इन फ्रंट ऑफ यू, हम स्टूडेंट अगर उस पूरे सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को इमेजिन करके अपनी आंखों के सामने आपस में डिस्कशन करता हुआ नहीं देख पाता है, उस सब्जेक्ट से इतना प्यार नहीं कर जाता है कि प्यार की भी इंतहा हो जाए सर, ऐसी सिचुएशन हो जाए, तब तक वो रिजल्ट नहीं आ पाता है. एंड आई हैव सीन रिजल्ट्स कमिंग फ्रॉम दो स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट को ऐसे ग्रास्प कर लेते हैं, आशिक की तरह से. बिल्कुल बिल्कुल सर. और इसी तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर बच्चा चुनता है जहां पर उसे पढ़ के ऑफ कोर्स सर वो सिलेबस उठाएगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएगा, वो पहले वो इन्फैचुएशन को डेवलप करेगा सर सब्जेक्ट के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके प्यार के अलग अलग 8 स्टेजेस को क्रॉस करते हुए फाइनली एग्जाम क्रैक कर लेगा. अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेता है एंड वो मेरे पास आता है, देन आई कैन अश्योर देम दैट दे वुड बी इन सेफ हैंड्स, बिकॉज वहां पर उनको इस तरीके की जुनूनियत देखने को मिलेगी जहां पर वो थिंकर्स को सिर्फ और सिर्फ पढ़ेगा नहीं, उनको जान जाएगा. अच्छा, पर्टिकुलरली सर इस एग्जाम के अंदर ये पहला स्टेज प्रीलिम्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स, डिफिकल्टी लेवल एक्सट्रीम हो रहा है, हमने समझा, स्ट्रैटेजी समझी, कैसे कोप करना है. मेंस में आंसर राइटिंग इज द की, उसमें कंसिस्टेंसी और किस तरीके से करंट अफेयर्स एंड एप्लीकेशन का पार्ट आपने जैसे बताया. इनफैक्ट हम एथिक्स की भी अगर बात करें तो एथिक्स भी एक एड ऑन फीचर हो जाता है, एक एड ऑन फैक्टर हो जाता है जो आपकी पर्सनालिटी को भी एनहांस करता है. सर पर्सनालिटी से याद आया, पर्सनालिटी टेस्ट जो पीटी है, आपका इंटरव्यू है, हाउ डू यू थिंक अंशुम सर, हाउ डू यू थिंक दैट इट इज अ चैलेंज, और वो किस तरीके से स्टूडेंट को उसे प्रिपेयर करना होगा? See sir, when it comes to interview is basically a test of your personality. Certainly. Is your personality suitable for this administrative job? This is basically the criteria that you will be measured with the interview panel. And this personality you cannot develop in one single day. So what I have realized through various interviews that I have given in my experience, which include some defense interviews, some UPSC CSE interviews. So basically there are 3 criteria which any interview panels, particularly UPSC CSE panel, will look for. The 3 personality traits that I would say. The first thing is whether the individual can identify the issue, whether it is a socio-cultural issue or an environmental issue or an administrative issue. So the first thing is whether that personality can identify the issue, can analyze the nuances around that issue. सबसे पहला challenge ये है, एक criteria that a UPSC panel will look. Then the second is what solutions that you can give to that problem, that issue which is there in front of administration. And after coming to the solution, covering all the aspects, then the third important aspect is how much you have learned from your mistakes in the past. Being a bureaucrat, this is a challenge in front of you, this is an issue. You have given this solution, that how you can further reform it or what you can learn from the past experiences. So generally these are the criteria which our interview panel try to test in an individual. Now when it comes to preparing for individual, it comes in different stages. The first stage, when you are preparing for interview, again you cannot do like this, that next day is your interview, you're starting
preparing for interview a day before. No, you cannot develop that personality in one single day. Certainly. So to start with, you should have, or you should, the first stage comes in reading, where you read not only the books that are part of a curriculum, but you can refer to online blogs. These days, those things are available. If I can link with some social media, this thing, many experts give their opinion on podcasts. These are very much, gaining that influence even in India. This is very old now in Western world. But we are getting this culture of podcasting and listening to the podcast, either video format or just the audio format. It is very much easy now, where you can get a very diverse fields of experts giving their opinion on their respective domains. Thanks. So you can learn from those experiences, reading in depth all the topics which are right now ongoing, like linking it with current affairs. So the first stage, I believe, is in-depth reading. Then the second stage that revolves in interview is basically how you speak in front of an interview panel, how you present and express yourself. They have tested your knowledge in prelims. They have filtered out the cream there. Some remaining, they get the chance to appear in the mains. In mains, they have tested your expression, that what is your knowledge. Then the test of the personality is how you express yourself there in front of the interview panel. Right. So the communication, the way you speak also plays a role. You should be confident in what you are saying. You should be placing your side of opinion with a positive attitude. See, anything, there will be certain things that an interviewer or a panelist or maybe the chairman won't agree to. But if you can present your point in a positive manner, this is something that will give you an edge over other candidates. And then keeping your voice in a moderate level. Neither you should be speaking very much in a loud tone, or you are fumbling, or this is what we say, a lack of expression. So communication plays a very important role, which I believe is the second part of the interview strategy. And the third is the behavior. You have to inculcate a behavior of a bureaucrat from day one when you are entering into the preparation. You have to treat yourself as a bureaucrat from day one. So this inner positivity will present your personality as a bureaucrat in front of the panel. So you have to talk like a bureaucrat, you have to walk like a bureaucrat, and you have to study like a bureaucrat. I believe that this personality trait, if you can imbibe it, like coming late to the class. Can you imagine coming late to a meeting with the chief minister or a PM? Certainly Again, not. So coming late to a class is not a personality trait of a true aspirant. Right. Then how you are making up your timetable, how you are making up your targets. This is what the preparation itself is a kind of a training which makes your personality as a bureaucrat. So I believe that this should be the approach for the interview, where you have to start preparing from day one. Certainly, sir. सर, आपने डिफेंस सर्विसेज के इंटरव्यूज की बात की, एसएसबी की बात की. मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मेरे फादर ही हैड क्रैक्ड एसएसबी वे बैक इन हिज टाइम, 1960s की बात है सर. तो ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि इफ यू आर प्लानिंग टू गेट इनटू डिफेंस सर्विसेज, एक बात समझ लेना, जब तुम ट्रेन से उतरोगे आपका इंटरव्यू वहां से ही शुरू हो जाएगा. इट इज नॉट एट द पॉइंट कि जब आप पैनल के सामने बैठे हैं. Exactly. और ये चीज सर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, आईएएस एस्पिरेंट को तहे दिल से समझनी होगी कि आप अगर इंटरव्यूज फेस करना चाह रहे हैं और इंटरव्यूज को क्रैक करना चाह रहे हैं, तो जिस दिन आपने ठान लिया कि आपने आईएएस बनना है, आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन उस दिन से शुरू हो जानी चाहिए. Exactly. क्योंकि आप नॉलेज गेन करेंगे, लेकिन उस नॉलेज से वाइज, वो विजडम, वो ज्ञान से जो आपकी सूझबूझ, आपकी समझ है, जब तक वो डेवलप नहीं होगी, इंटरव्यूज विल बी अ चैलेंज. तो इंटरव्यूज को क्लियर करने के लिए ये एक चीज आपको समझनी होगी. और ये तो सर आई थिंक इट इज नाउ अ वायरल एंड अ क्लीशे स्टेटमेंट कि भाई तैयारी उल्टी होती है, मेंस और इंटरव्यूज की पहले होती है, प्रीलिम्स की बाद में होती है.
ये तो अब इस वजह से बोला जाता ही है. द रीजन व्हाई वी से दिस एज टीचर्स इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जब आप मेंस और इंटरव्यूज की तैयारी करते हैं उस समय आपको पता चलता है कि जो प्रीलिम्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको ग्रैब कैसे करना, उसको समझना कैसे है. सर, व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग यही इंफॉर्मेशन, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, इंटरव्यू से रिलेटेड तैयारी की बात करें, हाउ, एंड सर ये थोड़ा वायरल क्वेश्चन होने वाला है, सो आई वुड सीक योर ओपिनियन ऑन दिस, हाउ रेलेवेंट इज कोचिंग? क्या यहाँ दिल्ली आकर, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, क्या यूपीएससी की तैयारी के लिए, क्या एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कोचिंग जरूरी है? So to answer this question, I would like to take my example itself. So as an engineer, we all think we are very smart. Right. तो हम टाइम, एनर्जी, पैसे सब बचाना चाहते हैं. So मैंने ये सोचा I will not do foundation course for GS. And I just did my foundation course for option. So in my attempts, what happened eventually that I was good at option, but in GS somehow I lacked that edge. तो आपको लगता है कि आप स्मार्ट हो और आपने टाइम या एफर्ट या एनर्जी या पैसे भी बचा लिए, बट वो आपको हिट करता है. तो सर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग कोचिंग? द एडवांटेज इज दैट यू गो फॉर हिट एंड ट्रायल इफ यू आर नॉट डूइंग कोचिंग. तो आप हिट एंड ट्रायल में आपका बहुत सारा जो कीमती समय है वो लॉस्ट हो जाता है. आप किसी टीचर, मेंटर, गाइड के पास जाते हो, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस है इस एग्जाम को लेकर, इतने सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने गाइड किया होता है, तो वो जो क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है, जो विजडम है, वो आपको मिलती है. तो आपका जो एफर्ट है वो बहुत कम हो जाता है. और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये लगता है कि आपके प्रिपरेशन में यू ऑलवेज नीड अ गुरु, यू ऑलवेज नीड अ मेंटर. आप यदि लकी हो और आप आए हो दिल्ली और आपको कोई एक गुरु या मेंटर मिल जाता है जो आपको समझता है. हर इंडिविजुअल डिफरेंट है और उसका स्ट्रैटेजी, पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका अलग अलग होता है. एक गुरु आपको सही तरीके से समझ सकता है. और इफ यू आर लकी एंड इफ यू मीट दैट पर्सन, देन दिस जर्नी कुड बिकम वेरी वेरी शॉर्ट. नॉट ओनली शॉर्ट, आपको जो नॉलेज की जो गेन होगी, दैट वुड बी मच मच मोर फुलफिलिंग. सो दिस इज, यूपीएससी इज नॉट लाइक यू हैव टू क्रॉस अ बैरियर. It is a journey. You have to enjoy the journey itself. But if you are walking on a right path, if that guru or mentor shows you that right path, then this journey will become fulfilling. Generally, इतने बड़े सिलेबस में प्रॉब्लम ये होती है कि हम मेहनत करते हैं बट सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर पाते. ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स सिंसियर नहीं है, तो वो सिंसियर होते हुए भी कुछ लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं सेलेक्ट होते. तो वो क्यों, कुछ जो सिंसियर लोग हैं वो सेलेक्ट नहीं होते? क्योंकि वो शायद सही डायरेक्शन में वॉक नहीं कर रहे हैं. तो वो डायरेक्शन कौन आपको सही बताएगा? वो डायरेक्शन आपको मेंटर्स, आपके गुरुज आपको बताएंगे. और हो सकता है वो घर बैठे आपको शायद ना मिल पाए, उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिल्ली आना पड़ेगा. और सर, ये भी होता है फाउंडेशन कोर्सेज में, यू विल मीट पीयर्स. एंड मोस्ट ऑफ आवर लर्निंग इन स्कूल, इन कॉलेज, we learn less from our teachers but more from our peers. तो ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ कोचिंग करने आए हो और आपकी इतनी अच्छी टीम बन गई हो, एक इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई हो कि आप वो जो एफर्ट लगा रहे हो, आप कलेक्टिवली लगा रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ब्रॉड हो रही है और वो टीम एफर्ट से आपको काम करने में भी मजा आ रहा है. तो वो फ्रेंडशिप जो है वो लाइफ लॉन्ग भी बन जाएगी और ये जर्नी भी शॉर्ट हो जाएगी. तो यूपीएससी की कोचिंग करने के एडवांटेजेस ज्यादा है, और जो एडवांटेजेस हैं दैट इज ओवरकमिंग द शॉर्टकमिंग्स. सो मैं ये भी बोलता हूँ कि सी नो फाउंडेशन कोर्स can claim that if you do this foundation course you can crack this examination. Ultimately you have to prepare for yourself, you have to sit for yourself, you have to do self study. But even if a coaching center can do 60 to 70% of the job, then I would consider that that is a well done job. So आपका एफर्ट 60-70% कम हो जा रहा है, दैट इज मच मोर बेनिफिशियल. आपको यदि 3 अटेम्प्ट लगते खुद से तैयार करने में, आप यदि 2 या 1 अटेम्प्ट में निकाल ले रहे हो, तो आई थिंक दैट इज अ विन विन स्ट्रैटेजी इंस्टेड ऑफ लाइक नॉट गोइंग कंप्लीटली फॉर दिस. एंड आई वुड स्टिल से दैट इफ यू आर averse to coaching, why not come to Delhi, talk to teachers, talk to mentors, explore the area here,
and decide for yourself whether it will suit for you or not. So it is completely up to you, but still it would be recommended that if you are in hands of people, those who have experience of this exam, you can learn from their experience. If I take my situation also, I have two elder brothers, so they were also preparing for JEE, but they couldn't get into JEE. But they knew what has to be done and what not has to be done. कौन से कोचिंग में जाना है, कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी. मैंने उनको बस blindly follow करा जो उन्होंने बोला, and I could crack in first attempt itself. So that becomes easier. So there are seniors like us who have given this exam. We have crossed all the stages of the exam, and we know where are the loopholes, where are the pitfalls. We can guide you. That is the main advantage of doing coaching. सर, आपने टीचर्स को जब गुरु बोला तो मुझे एक फ्रेज याद आया कि गुरु बिना गति नहीं हो सकती है. एंड सर एक चीज, एक हम सब नॉन फेरस मटेरियल पढ़ते होते थे, इफ यू रिमेम्बर, उसमें वो डोमेन के इंक्लिनेशंस रैंडमली स्टैक्ड होते थे, एंड गुरु एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, और वो सब बेसिकली नॉन फेरस मटेरियल को फेरस में कन्वर्ट करके उसको मैग्नेटाइज करके सब एक एफर्ट्स जो एस्पिरेंट लगा रहा है, और वो रैंडमाइज्ड एफर्ट्स हैं जो शायद उसको रिजल्ट्स नहीं देंगे. वो मेहनत तो कर रहा है लेकिन वो दीवार को धक्का लगाने में मेहनत कर रहा है. उसको किस चीज को धक्का लगाना है, कहां पर उसको एफर्ट्स डालने हैं, ये चीज एक टीचर बता पाता है विद हिज और हर ओन एक्सपीरियंस. और इस वजह से आपका जो ड्यूरेशन फॉर योर प्रिपरेशन है वो कम भी हो जाता है. सर एक और चीज, आई वाज रिमाइंडेड ऑफ सर्टेन लाइंस बाय राहत इंदौरी साहब, ही इज नो मोर विद अस. तो राहत इंदौरी साहब ने एक बात बोली थी कि ना हम सफर से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा. सो यू कैन नॉट, गाइस, यू कैन नॉट जस्ट फोकस ऑन समवन एल्स. आपको टीचर्स बताएंगे, मेंटर्स बताएंगे एंड सब चीजें बताएंगे, आपको डायरेक्शन देंगे, लेकिन अल्टीमेटली उस पुल को, उस ब्रिज को आप ही को क्रॉस करना होगा, आप ही को एफर्ट्स डालने होंगे रेगुलरली. कोचिंग से ये बेनिफिट होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, वी हियर एट श्रीराम IAS फॉर 35 long years, more than 35 years, we have been serving this nation, and thousands की नंबर्स में हमने रिजल्ट्स प्रूव किए हैं. यहाँ से इतने स्टूडेंट्स आते हैं, मेंटरशिप लेकर जाते हैं. इनफैक्ट अब तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हैं सर. ऑनलाइन मोड में हमारा अनअकैडमी के ऊपर एक कोर्स, एक बैच, फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है ऑन 26 जुलाई. मेक श्योर दैट यू नोट इट डाउन एंड रेफरल कोड भी याद कर लीजिएगा, दैट इज SRIRAMS श्रीराम्स. नाउ सर, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, टीचर्स हर तरीके से कोशिश करके स्टूडेंट्स की तरफ एक्सेसिबिलिटी बढ़ा रहे हैं. इट इज नाउ ऑन द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से, हम कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के अंदर अगर आप सही मेंटर्स को चुन लेते हैं, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स को, एक्सपीरियंस्ड इंस्टीट्यूशंस को चुनते हैं जिन्होंने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, आप उन रिजल्ट्स की स्ट्रैटेजीज को वापस से अपने खुद की जर्नी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं, एंड उसी चीज से इंश्योर कर सकते हैं कि आप भी सक्सेसफुल हो सकें. आप यूनिक हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ऐसा कहा जाता है सर, बिजनेस की फील्ड में ये बात बोली जाती है कि बिजनेस के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो कुछ गिने चुने स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जो आपसे पहले आपके टीचर्स ने, आपसे पहले एंटरप्रेन्योर्स ने, आपसे पहले जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो सब फॉर्मूलाज लगाकर देख चुके हैं. यूपीएससी पिछले साल नहीं शुरू हुआ है मेरे दोस्त. यूपीएससी को कंडक्ट होते हुए एज एन एग्जामिनेशन डेकेड्स हो चुके हैं, और उसके अंदर डेकेड्स लॉन्ग ऑफ पीपल हु हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम, उन सब के एक्सपीरियंसेस से, टीचर्स के एक्सपीरियंसेस से आप लोग सीख सकते हैं. और वो जो चोट है, जिस चोट की ज्वाला सर बात कर रहे थे कि वो चोट लगती है जस्ट बिकॉज कि आप रैंडमाइज्ड एफर्ट्स डालते हैं, उस चोट का असर कम हो जाता है. ये समझिए कि अगर चोट तलवार की घात की है तो वो एक सुई के नोक में तब्दील हो जाती है, बिकॉज ऑफ गुड टीचर्स, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस्ड इंस्टीट्यूशंस. इसीलिए आपको सजेस्ट करूंगा कि एक फाउंडेशन कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं ऑनलाइन मोड पर. ऑफलाइन में भी अगर आप आते हैं तो ओल्ड राजेंद्र नगर में, GTB नगर में श्रीराम IAS इज रनिंग कोर्सेज. आप अनअकैडमी पर जाकर
हमारे ऑनलाइन फाउंडेशन बैचेस को भी चेक कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल बैच भी शुरू होने वाला है 31 जुलाई से, उसे भी चेकअप कर सकते हैं। और वेरियस क्लासेस जो हम ऑनलाइन मोड पे यूट्यूब के ऊपर एंड ऑफलाइन एज वेल कंडक्ट कर रहे हैं, उसे जरूर आकर देखिए। मेरी सजेशन ये होगी कि एक बार को आपको हर एक चीज ट्राई करनी चाहिए, समझना चाहिए व्हाट वर्क्स फॉर यू। डज दी ऑनलाइन वर्क फॉर यू मोर, या फिर ऑफलाइन आपके लिए ज्यादा काम करता है? अगर आपके लिए ऑनलाइन ज्यादा काम करता है देन श्रीराम आईएएस के ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं। ऑफलाइन काम करता है तो वी हैव 2 सेंटर्स, एक जीटीबी नगर में, एक ओल्ड राजेंद्र नगर में। आप आइए, बैठिए, क्लासेस अटेंड कीजिए, देखिए आपको क्या चीज सूट करती है, और कोशिश कीजिए कि हमसे, हमारे जैसे जितने भी टीचर्स हैं हिस्ट्री के लिए, वी हैव एट श्रीराम आईएएस 20+ टीचर्स एज फैकल्टी टीम इंक्लूडिंग श्रीराम सर हिमसेल्फ, और करीब करीब 4 दशकों का, 4 डेकेड्स का एक्सपीरियंस रहा है इस इंस्टीट्यूशन का। और अगर मैं पूरे के पूरे टीचर्स की जो टीम है उनके एक्सपीरियंस को इनकॉर्पोरेट कर लूं तो करीब करीब 100 साल का टोटल एक्सपीरियंस हो जाएगा टेबल पे। एंड उस एक्सपीरियंस से गेन कीजिए, जो आप गेन कर सकते हैं वो नॉलेज एक्वायर कीजिए। बिकम वाइज इन योर सब्जेक्ट, बिकम वाइज इन योर प्रिपरेशन। देखिए, आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एवरी सब्जेक्ट मैटर्स। आप जब आंसर राइटिंग करते हैं, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन है, it is either about commenting on a statement, it is either about critically analyzing that statement. सर, हम जितने भी डायरेक्टिव्स देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर, it is more or less about what you perceive about that subject, that topic or that particular question. तो आपका परसेप्शन, आपकी समझ, आपका नजरिया आपकी समझ से, आपकी सूझबूझ से, आपकी विजडम से आता है, और आप वाइज तब होते हैं जब आपके ऊपर गुरु की कृपा होती है। एंड वो बेसिकली आप जैसे भी, जिस भी फॉर्म में, जिस भी शेप में आपको मिलती है, यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। आप उस चीज को पकड़िए, अपने हिसाब से उसे एसिमिलेट कीजिए एंड अपनी जर्नी को थोड़ा सा स्मूथ बनाइए, क्योंकि ये जर्नी 8 से 9 महीने लंबी जर्नी है। जब एक माँ किसी शिशु को जन्म देती है, वो भी 9 महीने लेती है, और उस 9 महीने के अंदर उस माँ को किन सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिजिकली, मेंटली, ये माँ ही जानती है। और अगर एक आईएएस एस्पिरेंट को मैं बोलूं कि वो इस पूरी जून से, इस पूरी जर्नी से जब वो गुजरता है, वो भी परेशानियों का सामना करता है। इंटरव्यूज, प्रीलिम्स एंड मेंस, आप जिस मर्जी स्टेज की बात कीजिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कोप विद द स्ट्रेस। सर, हम चाहे इंटरव्यूज की बात करें, मेंस की बात करें, आंसर राइटिंग की बात करें, द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दैट एनी स्टूडेंट अप्लाइज, हमें टीचर्स मिल गए, हमें क्लासेस मिल गई, क्लासेस की वजह से हमारा टाइम जो है, टाइम मैनेजमेंट सही हो गया, हम एक शेड्यूल फॉलो करने लग गए। सर के हिसाब से बोले तो सर, हम क्लास में लेट भी नहीं हो रहे हैं, हम एथिक्स भी फॉलो कर रहे हैं, हम सब चीज सही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है, सर मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते रहते हैं, आज की डेट में सर बोले तो किसी का कभी ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि यू आर इन दैट एज ग्रुप, आप 18 साल से ऊपर होते हैं तो कोई ना कोई सिचुएशन पर्सनल लाइफ में हो रही होती है, कभी फैमिली सिचुएशन होती है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज दिस लाइफ, दिस जर्नी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। अब उन एफर्ट्स की वजह से बच्चा, जो कि अभी इतना डेवलप नहीं हुआ होता है मेंटली, वो इस साइकी को, इस पूरे स्ट्रेस को कैसे कोप अप करे, वो किस तरीके से इस जर्नी के अंदर अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकता है। सर, आपकी सजेशंस? See, when it comes to stress, 2 key factors हैं, stress and time management, and both are interconnected. Time manage नहीं होगा तो stress होगा, stress होगा तो time manage नहीं होगा. Right. So both are, binded together with a very close bond. So first, every individual has to analyze that what is the basic reason that giving him or her that stress. What is the source of that stress? This is the first thing that anyone has to figure it out, because if you are looking for a solution. So, but if we see a generalistic approach, that what are the reasons that give stress to the UPSC aspirants, there are 2-3 reasons that I can make out. The first is vastness of the syllabus. The syllabus is so huge.
Like I have mentioned this earlier in the session. Yeah, everything under the sun, including the sun, is the syllabus. So this vastness is the biggest, stress for aspirant, and especially for those who are just beginning their preparation. Then the second stress that I have encountered in different students interacting with them online, offline, is that they are juggling with so much of book readings. Like they are like politically, ye bhi pad lu, ye bhi pad lu. We know that there are different options available in the market. So I would like to add that when Jwala sir was mentioning why coaching is important and what you have added, कोचिंग से हमें एक चीज पता चल जाती है, जो मैं समझता हूं कि क्या पढ़ना है ये जरूरी नहीं है सबको पता चले, बट क्या छोड़ना है, what not to study, this is something that is clear in aspirant's life. True. And then if we talk about other sources for stress, हो सकता है कि कुछ पर्सनलाइज रीजंस भी आज के टाइम में स्ट्रेस है, सोसाइटल प्रेशर, मे बी शर्मा जी का लड़का, दिस इज समथिंग वेरी ह्यूमरस दैट इज बॉदरिंग ऑलमोस्ट एवरी फैमिली. ठीक है, एवरी फैमिली हैज सम रिलेटिव टू लुक अप टू. सो इस तरह के कुछ स्ट्रेस होते हैं जो एवरी इंडिविजुअल इज फेसिंग, एंड I believe that this is something that remains with us throughout our life. This is how you have to manage this. Now coming to how you can come out of stress and better time management. So basically in UPSC exam you have to strategize your preparation in a very smart way. Like हम जंगल का राजा शेर को कहते हैं, और अगर if we talk on the hard work what is done, वो सबसे ज्यादा गधा करता है, donkey. True. So donkey works 16 to 18 hours a day, and on contrary lion sleeps 16 to 18 hours a day. But when lion wakes, he strategically targets his prey and then strategically उसको hunt down कर देता है. Right. But a donkey will keep on and on for 16 to 18 hours a day. So हमें यहाँ पर गधा नहीं बनना है, हमें यहाँ पर शेर बनना है. This is what my general understanding of this exam is. Then how we can achieve this? How we can improvise smart work? How we can reduce our stress? This is possible that if you can do your micro planning. Like every aspirant has 3 set of divisions in his mind. Like the subjects or areas in which he is strong. The second, the subjects and areas with which he has some knowledge, and the subject and areas where he is almost zero, where his knowledge is absolutely nil. Bantadar hai basically. Exactly. And looking at the diversity of this exam, यहाँ पर ऐसे कुछ areas आपके साथ होंगे ही होंगे जो जिस पर आपका grip is something that you are hearing this for the first time. Like for a arts background student, science and technology in these areas are a little difficult. For a science background student, all these areas which are humanity based, theoretical, history, geography, these areas, the societal issues, this at times are problematic. Yeah. So you have to work and identify your set of areas, your set of subjects in which you are strong. I believe that if you are starting your preparation, you rather in your first stretch of preparation, you work for those areas where you are weak. पहले उसको खत्म करो, because जिसमें इंटरेस्ट है, जिसके बारे में आपको पता है, वो तो आप एंड में भी कम टाइम के साथ भी कवर अप कर सकते हो. So your strategy should be other way around. What general strategy a student follow is that he will tend to revise that area that he loves more, because that area keeps him exciting. He keep that interest in that subject, or in the reading of the subject. Right. So this is the first thing, that you identify your areas. Then micro planning. You should set some small targets. Like I have seen people setting up targets that I will finish Lakshmikant in 1 week. And a student who is reading Lakshmikant for the first time. Now this is a very much achievable target. Somebody can even do this in 3 days. But you are just sitting and reading.
But this is not what is required in this exam. What is required is understanding of the book, understanding of the concept, and then comprehending that what you have read. So making targets, making smaller targets and achievable targets, and yes, working on those targets each day. Like you can improve. Like one day you have sat for 2 hours as a study to start with. You are sitting with a 2 hours of plan. The next day, do not jump to 4 hours. Start with 2 hours 10 minutes, 2 hours 20 minutes. Slowly and gradually you can increase your pace, your level, your depth. So this, I believe, micro planning is required. And then one thing what I have identified as a source for stress is multiple readings. So I suggest that it is better to read one book 100 times than reading 100 books one time. So people are juggling with, like they are studying polity from this book, from this book, from this book. There are n number of books available in the market. Then each institute have their own publications. So what to study and what not to study, this is what our mentoring will help you. This is what we can help you with that information overview. This is where the role of mentors will come in, the role of faculties will come in. So working on micro planning, then reading one book multiple times, that is doing multiple revisions, and then practice. Practice is the key. Like I am quoting myself again, that if UPSC is a battle and you are fighting this battle by understanding just the theory of your guns, you cannot kill your enemy, you cannot fight your enemy. If you want to understand the guns and the weapons available to you, you need to practice with those guns. Right. And in this case, the practice comes whether you are at interview stage, whether you are at main stage or prelim stage. Each stage in this exam requires comprehensive practice. So for prelims, start solving MCQs, comprehensive tests, subject tests. Whatever you are doing, plan it accordingly. Do not jump into comprehensive test straight away. First, start with whatever you are reading for prelims. Just look for what type of questions that have come and what are different test series, the subject-wise test or subject-wise test series is making it up for you. And then same goes for mains exam. Now, mains exam, as we were talking on answer writing, how you can build up practice on mains. So again, you can divide your mains preparation in 3 stages. The first set of answer writing, I believe, is the beginner stage, where you just start writing, irrespective of the word limit, irrespective of the time and any other constraint. You just write. Build that habit of writing. This is, I believe, is the first stage of answer writing. Second stage, the intermediary stage, I believe, understanding the question. Developing on the understanding of the question. If you understand what is asked, 80% of the job is done in the answer. If you understand what is written in the question, like you were mentioning the importance of tail words, critically analyze, comment, discuss, along with what is asked there. So if you do this preparation, again in this second stage, you ignore your time, ignore your word limit and just write. Then comes the most difficult stage, the expert stage of answer writing, I believe, where a person has to write not just in time frame, not just in word limit, but in this leg of journey, like you will enter your expert stage when almost 8 months of preparation is gone. You are done with all your basic subjects, you are now understanding what UPSC is. The biggest and the toughest stage of answer writing comes here. Now in this stage, for every topic you have good number of points which are available, which are merits, demerits, whatever. Now to filter out what points suits your answer the best is what makes the difference. Right. So in the third stage of answer writing, I believe this is how you should approach in order to reduce your stress and time management. And along with this, in the end, I would also like to add that
only studying is not gonna make you clear this exam. Because general studies, like you have quoted some Shair, the poet, you have quoted some movies. So general studies is something that you can learn from everywhere, everything that is surrounding you. There are at times questions that you can answer, especially sir in science and tech. Like I got reminded of one Hollywood movie, Rampage, if you have seen. So that CRISPR-Cas9 technology, the gene editing technology, is mentioned there. So if you can comprehend and can link and can learn from those things, can help you sail this exam. सर इस टेक्नोलॉजी के ऊपर 3-4 साल से काम चल रहा था, वो जीन एडिटिंग और वो जीन सिजर्स वाला कॉन्सेप्ट, एंड आई सॉ दिस मूवी इन 2018 एंड रॉक द ड्वेन जॉनसन की मूवी है सर, वो बहुत फेमस हुई थी और उसमें वो साइज बड़ा कर देते हैं और एनिमल्स का और ये सब, काफी अच्छी मूवी थी, एंटरटेनर मूवी. एंड आई वाज लाइक कि अगर यूपीएससी के एग्जाम सेटर ने ये मूवी देख ली, बिकॉज विद इन द फर्स्ट फ्यू सेकंड्स ऑफ द मूवी वो लोग डिस्क्रिप्शन में वैसे लिख के देते हैं कि CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, ऐसे ऐसे करके होता है. एंड आई वाज लाइक कि मैं पिछले 2015 से 2016 से ये न्यूज़पेपर में देख रहा हूँ और ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है, जबकि ये क्वेश्चन आना चाहिए. एंड नाउ आई थिंक दैट दिस क्वेश्चन विल कम. एंड सर अब तो 2 बार हो गया सर, उस साल वो पहला साल था जब यूपीएससी ने वो क्वेश्चन पूछा. दैट मींस एवरी स्टूडेंट हैज टू बी अवेयर अबाउट देयर whereabouts. So yeah, when it comes to stress management, sir, I believe that, see, everyone cannot study 10 hours continuously throughout 365 days. सर वो तो फिर ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे There will be days where you will be motivated enough, जहाँ पर your studying potential, your efficiency is high, and there will be days when you are feeling low. Maybe the quality study that you have done in that day is just 1 hour. Right. So along with studies, you need a regular break, some intervals in a day, as well as weekly breaks and monthly breaks, so that you can refresh yourself. So maybe, and now this is individual perspective, anything that you enjoy, maybe working out in the gym, have a run, maintaining your health is also important when it comes to preparation of UPSC. So anything that you enjoy, maybe singing session, a swimming session, or whatever your hobby is, if you can balance all these things together, you can balance your time management as well as stress. सर अभी एक टॉपर हैं, शी क्वालिफाइड द एग्जाम दिस ईयर ओनली. आपने सर जो बैलेंस मेंटेन करने की बात की, शी हैड इन वन ऑफ द इंटरव्यूज सजेस्टेड कि जैसे हर स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को इतना अलाउड है कि वो हफ्ते में 1 ऑफ ले सकता है, राइट. सो शी सेड, एंड शी वाज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, तो वो अब्रॉड भी ट्रैवल किया उन्होंने, काफी बीचेस वगैरह एक्सप्लोर किए. देयर आर सोशल मीडिया पोस्ट्स एज वेल. सो शी वाज टेलिंग द स्टूडेंट्स कि भाई आप उन एक छुट्टी को ऐसा क्यों नहीं करते कि जैसे आपको मंथ की 4 छुट्टियां हैं, उन 4 छुट्टियों को 4 महीने तक रोक लीजिए तो 16 हॉलीडेज हो जाते हैं. तो 16 डेज ऑफ हॉलीडे, 16 डेज की वेकेशन बहुत अच्छी प्लान हो सकती है. सो यू कैन प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली. सर स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड ये एक वेकेशन वाला एस्पेक्ट तो बहुत जमता है. एंड सर वो दूसरा एस्पेक्ट कि आप सर लक्ष्मीकांत 5 दिन में खत्म करना इज नथिंग बट जस्ट कि वो ऐसे ग्रैब करके वायरल वीडियो बना सकते हैं. Exactly. मैं इनफैक्ट सर दिस वाज हैपनिंग, आई वाज गेटिंग टू द इंस्टीट्यूशन श्रीराम्स में एंटर कर रहा था. सो यहाँ पे सर जमावड़ा लगा रहता है, कोई भी एस्पिरेंट इधर से उधर, तो कभी भी कान में जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो चली जाती है. तो वन ऑफ द एस्पिरेंट्स वाज बोस्टिंग अबाउट इट कि मैंने बिपिन चंद्रा को 1 हफ्ते के अंदर खत्म कर दिया. आई वाज लाइक कि दिस इज नॉट द फीट दैट यू शुड बी सेलिब्रेटिंग. यू शुड बी सेलिब्रेटिंग द फैक्ट कि आपने समझ लिया है इतने दिन में. तो वो समझ जब तक वो डेवलप नहीं करेगा तब तक नहीं होगा. एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर देखिए ऐसा है कि आप इंसान हैं और इंसान एफर्ट्स डालता है रिजल्ट्स लाने के लिए. बिकॉज अगर आप गीता के श्लोक्स को भी समझेंगे तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप फल की फिर भी इच्छा करते हैं. हम हमेशा चाहते हैं कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड हों, बिकॉज रिजल्ट्स इस जर्नी के अंदर बाद में आते हैं.
आप आज पढ़ते रहेंगे, आपको धीरे धीरे करके पता चलता है कि किस सब्जेक्ट की, किस पढ़े हुए टॉपिक की क्या रेलेवेंस है। जिस दिन आप उस कुर्सी पे बैठेंगे ना, पीछे सफेद तौलिया लगा रहेगा और सामने एम्बलम होगा, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि क्या क्या चीजें आपने पढ़ी और उनका क्या सिग्निफिकेंस, क्या रेलेवेंस है इस फील्ड के अंदर। लेकिन तब तक आपको पेशेंस रखनी होगी, और पेशेंस इंसान आज के सोशल मीडिया के युग में, जहां पे हर कोई 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स वर्थ ऑफ फेम ले रहा है, 15 सेकेंड्स की रील बनाकर फेमस हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, उस सिचुएशन के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मेरी कुछ सजेशंस रहेंगी सभी एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि आपके लिए एक फॉर्मूला सेट कर सकती हैं और आपकी लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री कर सकती हैं। First thing I would recommend is you should refrain yourself from using a lot of social media. YouTube यूज कीजिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज कीजिए, अपने फायदे के लिए यूज कीजिए। दूसरा, ये इंस्टाग्राम वगैरह छोड़ दीजिए। अभी आप 1-1.5 साल रुक भी जाएंगे तो नए इन्फ्लुएंसर आ जाएंगे, आप उनकी जानकारी में आ जाएंगे, एंड आप खुद सोशल मीडिया नहीं, सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं जब आप एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। दूसरी चीज, आई वुड हाईली रिकमेंड एवरी एस्पिरेंट टू ट्राई, थोड़ा अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज कीजिए कि आप एक मॉर्निंग पर्सन बने रहें। इंटरव्यूज रात के समय में नहीं होते हैं, दिन के समय में होते हैं। सो अगर आपका जो सर्काडियन रिदम है, जो आपका जो डायर्नल वेरिएशन ऑफ योर मूड्स हैं, जो कि रात के टाइम वाला आपका मूड अगर दिन में हो रहा है, आप 12 बजे 1 बजे उठ रहे हैं और उसकी वजह से आपका आधा दिन एनर्जी लो में चला जाता है, इस चीज को अवॉइड कीजिए। थोड़ा टाइम को इस तरीके से मैनेज करना शुरू कीजिए कि आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन हो, आप 4 साढ़े 4 नहीं तो कम से कम 5 या 6 बजे के आसपास उठना शुरू कीजिए। यू वुड रियलाइज दैट जनरली एस्पिरेंट्स बहुत बार ये बात बोलते हैं, सर आपके सामने भी कई बार बोली होगी ये बच्चों ने बात, कि 24 घंटे कम लगते हैं। हम पढ़ना जाते हैं लेकिन 24 घंटे कम लगते हैं। वो कम इस वजह से लगते हैं बिकॉज दे हैव नॉट यूटिलाइज्ड दैट मॉर्निंग टाइम। वो सही तरीके से टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे। दूसरी चीज, अगर आप सुबह उठकर और शाम को रात को सोने से पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट एसिमिलेशन का एक प्रोसेस फॉलो करें, जिसके अंदर चाहे आप मेडिटेशन कीजिए, आप योगा कीजिए, आप हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइजेस कीजिए। मेरी सेहत को मत देखिएगा, ये तो पढ़ाते पढ़ाते ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन में वजन बढ़ जाता है, हर किसी का पेट बाहर आ जाता है, शादी के बाद तो सर वैसे भी आ जाता है। एंड पर्टिकुलरली एस्पिरेंट के लिए ये चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि उसकी फिजिकल बॉडी एक्टिव रहे, इतनी एक्टिव रहे कि उसका माइंड जिस फिजिकल बॉडी में है वो भी एक्टिव रह सके। तो देयर आर प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स जो कि आपको बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, पर्टिकुलरली आप अनअकैडमी पे भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स बताने वाली वीडियोस भी मिल जाएंगी। मेरा सजेशन ये होगा कि आप सुबह उठिए तो एक बार को मेडिटेशन जरूर कीजिए। आप 5 मिनट आंख बंद करके बैठते हैं, 10 मिनट आंख बंद करके बैठते हैं, 15 मिनट बैठते हैं, वो आपका टाइम मैनेज इस तरीके से करता है कि थ्रू आउट द डे योर ब्रेन इज एक्टिव, एवरी सिंगल थिंग दैट यू परसीव। हम लोग जब आंसर्स लिखाते हैं, मेनी ऑफ द टीचर्स, मैं आपको खुद से बता रहा हूं, मैं पूछूंगा भी नहीं दोनों से, हर टीचर, ऑलमोस्ट एवरी टीचर फॉलोज दीज टेक्निक्स। वो आपको बता रहे हैं नहीं बता रहे, मैं पोल खोल रहा हूं। अगर इस चीज को फॉलो करते हैं तो यू विल हैव अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव। आपकी धारणाएं बदलने लगेंगी। सर हम देखते हैं कि टीचर्स का जो पर्सपेक्टिव होता है टॉपिक के प्रति, वो स्टूडेंट के नजरिए में आ नहीं पाता है। और जब वो टीचर से जब पूछता है कि सर ये परेशानी है, ये टॉपिक ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, और जब हम बताते हैं तो वो कहते हैं ओहो सर ये तो मैं समझ रहा था लेकिन मुझे पता क्यों नहीं चला, आपने बता दिया। हमें भी ये चीजें इसलिए पता चलती हैं बिकॉज वी हैव डेल्व्ड इनटू दिस फील्ड। हमने 10 साल 15 साल इन सब्जेक्ट्स को दिए, और हम भी उस चीज को, जब तक आप खाना खाते रहेंगे उसको डाइजेस्ट करने का समय नहीं देंगे और उसके बाद असिमिलेशन का समय नहीं देंगे, तब तक बात नहीं बनती है। फॉर दैट रीजन, फॉर असिमिलेशन पर्पसेस, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू शुड सिट डाउन। आप बैठिए, आंख बंद करके 5 मिनट दीजिए अपने टाइम का, और माइक्रो प्लानिंग जैसे अंशुम सर ने बताया वो कीजिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, ज्वाला सर ने जो स्ट्रैटेजीज बताई हैं, चैलेंजेस को कैसे कोप करना है वो फॉलो कीजिए, श्रीराम IAS को भी फॉलो कीजिए, एंड उसके साथ साथ
जो कोर्सेज हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं, फाउंडेशन बैचेस हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो बैच अभी 31 जुलाई से शुरू होने वाला है ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफलाइन सेंटर्स को विजिट कीजिए। हम यहाँ पर राजेंद्र नगर के अंदर न्यू दिल्ली के में हम कोर्सेज करवा रहे हैं। इट हैज़ बीन 35 लॉन्ग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और हर साल अनगिनत लोग अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं then you should keep following us and keep following such positive content. Thank you, take care, and God bless you all.